Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the performance of Banaras Ka Thag. Before we begin the performance, I'd like to invite Dr. Aziz Qureshi, the former governor of Uttarakhand and a trustee of the Khwaja Ahmad Abbas Memorial Trust, to please come on stage. Aziz Saab is a trustee of the trust and has been a guide for us over the years and a supporter for us as well. And I'd like to request Aziz Saab to please say a few words. Ladies and gentlemen, ख्वाजा अहमद अब्बास किसी एक व्यक्ति का, ये एक शख्सियत का नाम नहीं है। वो नाम है एक अहद का, एक स्ट्रगल का, एक संघर्ष का, एक हिम्मत का, एक बगावत का और एक नए दौर की तारीख लिखने वाले का। दुनिया में जहाँ भी जुल्म हुआ, चाहे वियतनाम में हो, अल्जीरिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो या दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ इंसानियत मजरूह हुई, ख्वाजा साहब का कलम जाग गया। वो अपने खूने दिल से लिखते रहे कहानियाँ उन लोगों की जिनको तलाश थी इंसाफ की, जिनको तलाश थी आज़ादी की, जिनको तलाश थी जमहूरियत की। और आज के दिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तहे दिल से उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करूं उस तमाम उनकी मेहनत का जो दुनिया के अदब को उन्होंने दी है, जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। आज का जो प्ले किया जा रहा है बनारस का ठग, तो हम जानते हैं, सदियों से हम किस्से सुनते आए हैं बनारस के ठगों के और ठगी से लूटने वालों के। कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि वो ठगी आज बंद हो गई है, लेकिन बात ये नहीं है। ठगों के चेहरे बदल गए हैं और लूटने वालों के चेहरे बदल गए हैं। पहले जो ठग थे वो लूटते थे अफराद को, व्यक्तियों को, ख़ानदानों को, उनको कत्ल करके उनकी दौलत संपत्ति हासिल करने के लिए। आज के जो ठग हैं इनका शिकार अफराद नहीं हैं, इनका शिकार एक पूरा अहद है, एक पूरा एरा है, एक पूरी तारीख़ है, एक पूरी जद्दोजहद है। ये वो ठगी है जिसमें इन ठगों ने इनकलाब की सूरज के निकलती हुई किरणों को छीन लिया है और आने वाले इनकलाब को पीछे ढकेल दिया है। ये वो ठग हैं जिन्होंने इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को, हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की सिद्धांत को, हमारी जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को, सबको ख़तरा पैदा कर दिया है। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, गरीब आवाम जब उठेगा तो सारे तार को, सारे जाल को तोड़ के फेंक देगा। और इस मुल्क में गरीबों और मजदूरों के राज को आने वाले से कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन आएगा कि सारा निज़ाम जो सड़गल चुका है, मर रहा है निज़ाम हमारा पूरा। ये निज़ाम which is dead, the old order is dead, but the new order is not yet born. It is struggling to be born. तो आइए हम और आप मिलकर इस नए निज़ाम के पैदा होने में अपना रोल अदा करें। थैंक यू वेरी मच। Shukriya, Aziz Saab. I'd now like to invite Dr. Ahmed Zahir, also a trustee of the Khwaja Ahmad Abbas Memorial Trust and the grandnephew of Khwaja Ahmad Abbas, to please say a few words. Thank you. Thank you very much. Dear audience, good evening. My name is Dr. Ahmed Zahir, and on behalf of the Khwaja Ahmad Abbas Trust and His Excellency Mr. Aziz Qureshi, I welcome you most wholeheartedly
to the viewing of a play based on K. Abbas's short story. This is one of the short stories that Mr. Abbas wrote from among his 74 books penned over 73 years. Banaras Ka Thug is actually about an unknown man who enters Banaras and proceeds to question the rules of the city. This play, directed by Anuradha Kapoor, who is a foremost theatre personality, and she's headed the National School of Drama for 20 years. She was very, very taken by Abbas, and it was etched in Anuradha's childhood memories as a person she admired and appreciated for his values, writings, and all his movies. Vidya Rao, my friend and most favorite classical singer, will embellish this evening with a mellifluous voice. Also motivated by Abbas's work and contributions, Vidya will render music on something close to her heart. Danish Iqbal is a veteran Abbasite. I would call him a Abbasite. He is an accomplished writer, Dastan Goi reciter, and a prominent theatre personality. He comes back to stage again with Abbas's work after his great successes with two other plays of Abbas, that is Masuri 1954 and Indar Ki Talwar. He will be conducting today's recitation. The play, ladies and gentlemen, will run for about an hour. The story revolves around the cosmos of Kabir, who belonged to no religion but believed in the universality of man. As Kabir says, Chitta ne koi lash pai, Chitta ne koi lash pai, kafan raha benap. Moi matti kaise bati, moi matti kaise bataye, kya hai uski zaat. Moi matti kaise bataye, kya hai uski zaat. As a trustee of the K. Abbas Trust and as Abbas's grandnephew, I would like to take this opportunity to thank my uncle, His Excellency Mr. Aziz Qureshi, who has come all the way from Bhopal despite his indifferent health. Thank you very much, Aziz Saab. Aap kahan hain? Aage. Thank you for being with us today. A big thank you to Anuradha for always being there for our family, our rock of support. Vidya's voice will speak for itself, will sing and speak for itself. Personal gratefulness to you. Danish, once more, you are helping the trust. My gratitude to you in a most humble way. I would now, Aziz Saab has already said a few words on Abbas and the trust and his messages. Now for the next 1 hour, let us discover the Thug of Banaras. Thank you, audience, for being here today. Thank you. Thank you, Dr. Ahmed. Ladies and gentlemen, may I request you to please put your phones on silent and please, or put them in switch off mode. Let us not have the performance disrupted. The performance will begin now. ख्वाजा अहमद अब्बास ट्रस्ट की तरफ से आप सबका खैर मक़दम है, स्वागत है, वेलकम। सबसे पहले मैं याद करूंगी अपनी प्यारी हस्ती प्रमिला को। सुना है जब उन्होंने इस प्ले के बारे में सुना तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि ये बनारस का ठग क्या प्ले है। उनकी याद भी हमें बहुत आती है। तो ये ड्रामा अब्बास साहब की कहानी पर बेस्ड है, जो कहानी उन्होंने 60 के दशक के शुरू में लिखी थी। इसका अंदाज़ा हमें इस तरह हुआ कि 1956 में बनारस का ऑफिशियल नाम वाराणसी हुआ। तो ये कहानी है बनारस के उस शख्स की जो शायद उसका पहला वासी है या शायद उसका आखिरी वासी।
मगर वो वासी है जिसे अब्बास साहब मुसाफिर के नाम से पुकारते हैं। सैकड़ों साल बाद मुसाफिर बनारस की गलियों में उतरता है। न बोरिया न बिस्तर, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और फिर वो क्या देखता है और क्या क्या देखता है, और जनता इस अजीब और गरीब इंसान को आखिर क्या समझती है, चोर, उचक्का, क्या? तो हाज़रीन, बहुत अदब से आपकी नज़र है बनारस का ठग। इसमें बहुत अहम रोल संगीत का है जो हमारी प्यारी दोस्त विद्या राव अदा कर रही हैं। अभिनय एक बहुत ही मशहूर और बहुत दिल से नज़दीक डॉक्टर दानिश इकबाल का है, और इसके निर्देशक हैं हमारी सबकी मेंटर, जिसको हम बहुत एडमायर करते हैं, और इस मुल्क की बहुत माए नाज डायरेक्टर डॉक्टर अनुराधा कपूर। तो पेश खिदमत है हाज़रीन बनारस का ठग। स्टेशन पर लिखा हुआ था वाराणसी, पुलिस थाने के दरवाजे पर लिखा हुआ था वाराणसी, शराब की दुकान पर लिखा हुआ था वाराणसी, अफीम और गांजे चरस की दुकान पर भी लिखा हुआ था वाराणसी, पिंजड़े पोल पर लिखा हुआ था वाराणसी, पागलखाने की तख्ती पर लिखा हुआ था वाराणसी, किताबों की दुकान पर जहां कोक शास्त्र खुलेआम बिका करती थी लिखा हुआ था वाराणसी, औषधालय पर भी लिखा हुआ था वाराणसी, डाक खाने पे चिट्ठियों में खट खटा खट लिखा जा रहा था वाराणसी वाराणसी वाराणसी। जैसे हथौड़े की चोट हो, जैसे तबले की थाप हो, वाराणसी वाराणसी वाराणसी। लेकिन जब मुसाफिर ने एक राहगीर से पूछा, भैया ये क्या जगह है, जवाब मिला बनारस। उसके सूखे हुए होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, ऐसे जैसे बरसों बाद कोई अपने घर वापस आया है, ऐसे जैसे बच्चा अपनी मां से कह रहा हो कि मां मैं आ गया। रेत पे बंगला छवा जा मोर राजा, अरे बंगला छवा जा रे, रेत पे बंगला छवा जा मोर राजा, आवे लहर जमुने की, गंगा रेत पे गंगा रेत पे बंगला छवा जा रे राजा, आवे लहर जमुने की रे राजा, आवे लहर जमुने। दाहिने दाहिने सूर्य चंद्रमा पाए, दाहिने सूर्य चंद्रमा पाए, इनके बीच ठीक
मुसाफिर दूर, बहुत दूर से आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर रास्ते की कोई थकन नहीं थी। वो घर के सफेद उजले कपड़े पहने हुए था, उसमें भी कोई शिकन नहीं थी। उसके पास ना तो कोई टीन का डिब्बा था, ना तो नाश्तेदान था, ना सुराही थी, ना लुटिया थी, ना लोटा था, लेकिन उसे रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। सो उसने एक राहगीर से पूछा, भैया, यहां पर एक सराय हुआ करती थी भूली भटियारन के नाम की। सराय तो कोई नहीं है, लेकिन मुसलमानों के रहने के लिए एक मुसाफिर खाना जरूर है। और अगर कोई मुसलमान ना हो तो हिंदुओं के रहने के लिए बहुत सारे धर्मशालाएं हैं। और अगर कोई ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, वो कहां रहता है? हट! पागल है क्या? हट! कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आया लिबास मजाज के हजारों सजदे तड़प मेरी और जो खुदा जो खुदा मस्जिद बसत है और मुल्क के ही कारा जो खुदा मस्जिद बसत है और मुल्क के ही कारा मंदिर मूरत नाम निवासा मंदिर मूरत निवासा मंदिर मूरत राम निवासा बाहर गए जो खुदा मस्जिद बसत है पूरब दिशा हरि का वासा पूरब दिशा हरि का वासा पछवाला मुकाम दिल में खोजो दिल ही में खोजो दिल में खोजो दिल ही में
मुसाफिर बाजार से होता हुआ चला जा रहा था। उसने देखा कि बाजार में काफी रौनक है। वो सोचने लगा कि हमारे जमाने में तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। अच्छी बात है कि बाजार में इतनी रौनक है। उसने देखा कि दुकानों में बनारसी साड़ियों और कमखाब के कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। वो सोचने लगा कि अब तो हमारी औरतें कमखाब के कपड़े पहन सकती हैं, बनारसी साड़ियां पहन सकती हैं, अच्छे लहंगे सिलवा सकती हैं, पैजामे सिलवा सकते हैं। उसने गौर से देखा तो ऊनी कपड़ों से भी दुकानें अटी पड़ी थीं। हाँ, ये तरक्की की निशानी है। हमारे जमाने में तो इस मौसम में रुई के दगले से काम चलाना पड़ता था। लेकिन ये क्या, उसने जैसे ही बाजार का रुख किया तो देखता क्या है कि लोग मैले कुचैले, फटे हुए और गंदे कपड़े पहने हुए हैं। एक औरत चौराहे पर फटे पुराने कपड़े से अपने और अपने बच्चे के बदन को ढकने की कोशिश कर रही है। हाथ गाड़ी से ढकेलते हुए दो दुबले दुबले मजदूर चले जा रहे हैं। उन्होंने फटी पुरानी धोतियां पहनी हुई हैं। दुकानों पे तो बनारसी साड़ियों का ढेर लगा हुआ है। फिर ये क्या हो रहा है? और वहीं एक लाला जी पश्मीने का दोशाला पहने हुए हैं और अंगीठी में हाथ सेक रहे हैं। और मुल्ला जी कश्मीरी सुनहरे मोजे पहने हुए हैं, मुंह से धुआं फूंकते हुए चले जा रहे हैं अपनी मोटर गाड़ी की तरफ। तभी उसके पास से एक लंबी सी मोटर गाड़ी गुजरी जिसमें एक झंडा लगा हुआ था। उसने गौर से देखा तो उसे टोपी की, सफेद टोपी की एक झलक नजर आई। पास खड़े एक राहगीर ने कहा, देखा भैया, मोटर गाड़ी के शीशे चढ़े हुए हैं ताकि मंत्री जी को छींक ना आ जावे।
महाराज! बाजार में से आवाज आई, लेकिन मुसाफिर ने ध्यान नहीं दिया। बाजार में काफी भीड़ थी, हो सकता है किसी और को आवाज दे रहा हो। श्रीमान! मुसाफिर ने फिर उधर ध्यान नहीं दिया। ए मिस्टर! ए भाई साहब! ये आखिरी वाला ए इतना जोर का था कि मुसाफिर वहीं ठिठक कर रुक गया। उसने पलट कर देखा तो एक आदमी सफेद साफ चमकते हुए कुर्ते और धोती में, बालों में तेल डाले और माथे पे चंदन का तिलक लगाए उसका पीछा करता हुआ चला आ रहा है। जी भाई साहब, क्या हुआ? लगता है आज ही तुम बनारस आए हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जी माई बाप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बनारस में तो मैं न जाने कब से रहता आया हूं, लेकिन इस वाराणसी में पहली बार आया हूं। हट! पागल है? उतने में एक और पंडा आ गया। श्रीमान, इधर रुकिए, इधर आइए। लगता है आज ही आप इस पवित्र भूमि में पधारे हैं। चलिए, आपको गंगा जी का स्नान करवा देते हैं। क्यों भैया, गंगा जी का स्नान करने से क्या होगा? है? नहीं जानते? गंगा का स्नान करोगे सारे पाप धुल जाएंगे, सीधा वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग। मुसाफिर सोच में पड़ गया। भैया, क्या सच में गंगा में स्नान करने से सीधा स्वर्ग मिलता है? सीधा स्वर्ग! चलो, मैं तुम्हें गंगा स्नान करवाता हूं। अच्छा, तो फिर तो सारे धोबी, नदी के सारे कछुए मर के सीधा स्वर्ग जाते होंगे। हट! पागल है? हे श्रीमान, रुकिए, आपको गंगा जी का स्नान करवाता हूं। किसको सुनाए दिलजार आवारगी में जमाने साई मोरा बसत गम पूर्वा साई मोरा बसत गम पूर्वा जहाँ गमन हमारे साई
मुसाफिर टहलते टहलते स्मशान घाट पहुंच गया। वहां उसने देखा लोहे के कटहरे के पास ढेर सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। एक आदमी चिताओं की लकड़ियों को उठा के इधर उधर कर रहा है। वो उसके पास पहुंच गया। उसने पूछा, और भैया सब ठीक तो है? कहां ठीक है, धंधा एकदम मंदा हो गया है। कौन सा धंधा? अरे यही क्रियाक्रम का, अंतिम संस्कार का। क्यों, क्या हो गया? एक समय था 10-15 बरस पहले, जब रोज कम से कम 100-150 शव आया करते थे अंतिम संस्कार के लिए। अब मुश्किल से 20-25 आया करते हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, मरना ही बंद कर दिया है। पहले देश के कोने कोने से यहां आते थे मरने के लिए, अब अधर्म फैल गया है, सबने घर में ही मरना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं भैया, मुसाफिर वहीं था। उसने देखा कि एक बूढ़ा अकेला अपने हाथों में अपने बेटे की लाश लिए चला आ रहा है। उसके साथ और कोई नहीं था अर्थी को कांधा देने वाला। वो जार कतार रोए जा रहा था, उसके आंखों से आंसू टपके चले जा रहे थे। मुसाफिर उसके पास गया, कहने लगा, लाओ ये लाश मुझे दे दो, तुम थक गए होगे। बूढ़े ने मुसाफिर को लाश देते हुए कहा, संभाल के भैया, मेरा इकलौता बेटा है। उसके लिए अभी भी वो है था नहीं हुआ था। वो दोनों लाश को लेके दूसरे किनारे पे चले गए। अचानक वहां पे एक जोर की आवाज, हे, यहां कैसे चले आए तुम लोग? जानते नहीं ये राजाओं महाराजाओं के अंतिम संस्कार क्रियाक्रम का स्थान है, चलो यहां से निकलो, यहां पे जलाने के लिए 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए? क्या मौत भी इतनी महंगी हो गई है? हाँ, जानते भी हो ये चंदन की लकड़ियां हैं, खास राजाओं महाराजाओं के लिए मंगाई जाती हैं। पैसे हो तो यहां रुको, वरना यहां से चलते बनो। मुसाफिर और बूढ़ा बच्चे की लाश को लेके दूसरे कोने पे पहुंच गए। अचानक वहां ढेर सारे लोग आ गए। 40 रुपए तो लकड़ी के लगेंगे, 5 रुपए क्रियाक्रम की सामग्री के, 5 रुपए पंडित के, 1 रुपए ठेकेदार के, 1 रुपए नहीं 1.25 रुपए ठेकेदार के। क्या क्या मौत का भी ठेका लिया जाने लगा है? हाँ, पैसे हो तो यहां रुको, वरना निकलो। बूढ़ा जार कतार रोने लगा। उसने मुसाफिर से कहा, मेरे पास तो एक नई कौड़ी नहीं है, जो कुछ भी पैसे थे सब इसकी दवा दारू पे खर्च कर दिए हैं। तो फिर निकलो, चल निकल यहां से।
कब जान लूंगी कब अश्क गौहर मांगे कब जान लूंगी कब अश्क गौहर मांगे ये किस दिन सुनवाए किस दिन तेरे सुनवाए है दीदाए तर दर्द उतने में एक और अर्थी आ गई। उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बैंड बाजा, ऐसा लग रहा था अर्थी नहीं पूरी बारात आई है। ये सारे मौत के ठेकेदार उधर भाग गए। यहां पर अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, मुसाफिर, बूढ़ा और बूढ़े के बेटे का शव। मुसाफिर ने पलट के देखा तो पास में ही एक चिता जल रही थी। मुसाफिर ने बूढ़े के बेटे की लाश उसी चिता में ले जाके डाल दी और देखते ही देखते एक के बजाय 2 चिताएं जल रही थी। बूढ़ा जार कतार रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया। उसके रोने की आवाज सुनकर ये सारे मौत के ठेकेदार वापस यहां चले आए। किसने बिना इजाजत इस चिता में इस लाश को जलाया? बोलो बोलो। मुसाफिर ने हाथ ऊपर किया। मैंने जलाई है। लाओ, निकालो निकालो 51 रुपए और 25 नए पैसे, अभी निकालो। पैसे तो हमारे पास नहीं है। नहीं है पैसे तो हम इस लाश को उठा के गंगा जी में फेंक देंगे। फेंक दो, फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब भी मुर्दा था, अब भी मुर्दा है और फिर भी मुर्दा ही रहेगा। लेकिन इससे इस बूढ़े को बहुत दुख होगा, इसलिए मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, नहीं करने दोगे? फिर हम तुम्हें भी इस चिता में जला देंगे मियां जी। जला दो, जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं मरने और खत्म होने से ऊपर उठ चुका हूं। जला दो। पंडों ने लाठियां उठाई और मुसाफिर की तरफ बढ़े। तभी एक आवाज आई, अरे जाने दो उसे, अरे ये पागल है भाई, छोड़ो। बहुत सारी लाठियां और लोग पीछे हट गए। जब चिता की आग शांत हो गई, सब कुछ जल गया, तो लोगों ने देखा कि बूढ़ा अपने बच्चे की अस्थियां चुन रहा है और मुसाफिर
मुसाफिर वहां से गायब था। जड़ाती रात थी, तारे टिमटिमा रहे थे। मुसाफिर को एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, ठिकाना जहां वो रात बिता सके। पंडित जी तभी मंदिर का दरवाजा बंद करके जा रहे थे। उन्हें एक साया दिखाई दिया। कौन है वहां? जी मैं हूं पंडित जी, रात भर के लिए एक ठिकाना चाहिए, यहां रह लूं। कौन जात हो? मुसाफिर सोच में पड़ गया। कौन धर्म हो? हिंदू हो? पंडित जी झूठ नहीं बोलूंगा, हिंदू नहीं हूं। का हो? इंसान हूं। तो फिर इंसान का मंदिर खोजो और वहीं जाके रुको। चलो हटो यहां से। पंडित जी ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। एक मौलवी साहब इशा की नमाज पढ़कर जा रहे थे अपने घर। उन्होंने साए को देखा तो रुक गए। पूछने लगे कौन हो भाई? मुसाफिर ने कहा मैं इंसान हूं। इंसान हो लेकिन किस मजहब के हो? ये इंसान क्या होता है? मजहब बताओ, अपना मजहब। मुसाफिर फिर सोच में पड़ गया। मुसलमान हो? नहीं मौलवी साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, मुसलमान तो नहीं हूं। और मौलवी साहब ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। जोगिया
तारे टिमटिमा रहे थे आसमान में। ऐसा लग रहा था जैसे झांक कर देख रहे हो कि जमीन में क्या हो रहा है। चांदनी रात में एक इमारत जगमगाई। मुसाफिर के पास और भी कई लोग बैठे हुए थे। उसने उनसे पूछा, हे भैया, ये कौन सी जगह है, क्या है ये इमारत? जवाब मिला, पता नहीं क्या है, इसे तो अकबर बादशाह ने बनवाया था ताकि हिंदू और मुसलमान साथ में इसमें इबादत कर सके। औरंगजेब ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। एक राजा ने इसे तुड़वाकर मंदिर बनवा दिया। अभी का है ये, पता नहीं क्या है। फिर तो यही हमारी जगह हो सकती है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं हो। यहीं मैं रुकूंगा। अभी मुसाफिर इमारत के बाहर ही था कि उसे पुलिस के कुत्तों की आवाज सुनाई दी, भौंकने की। पुलिस के कुत्ते शहर में एक पागल को खोज रहे थे। वो आवाज कुत्तों की और करीब आती गई, और करीब और करीब। पुलिस वाले ने मुसाफिर से पूछा, कौन जात हो, क्या नाम है? कौन जात हूं, का नाम है? साहब, जात का तो जुलाहा हूं, और काम है कपड़े बुनना। यहां क्या करने आए हो? जी, हमारा करघा कहीं खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। सोचा हो सकता है यहां किसी को मिला हो और अब वो कपड़े बुन रहा हो, पर आपने तो खोजने का समय ही नहीं दिया। पुलिस वालों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। ए, इधर आओ। अरे ये ठग वग नहीं लग रहा है, ये तो साला पागल लग रहा है। अगर रात भर यहां रहेगा तो हमारी रात खराब कर देगा। इसे पागल खाने छुड़वा देते हैं। और उन्होंने पागल खाने में फोन मिलाया। उधर से फोन उठा, हेलो, पागल खाने से बोल रहे हैं श्रीमान? आवाज आई, हाँ बोल रहा हूं, बताओ क्या काम है? अरे भाई, एक आदमी मिला है जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। क्या नाम है? अरे वो ठग वग कुछ नहीं है, वो पागल है, हम उसे आपके पास पहुंचा रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नाम क्या है? अपना नाम कबीर बताता है। और मुड़ के देखा तो मुसाफिर वहां से गायब था। नकाब हुस्न दो आलम उठाई जाती है। मुझी को मेरी तजल्ली दिखाई जाती है। मुझी को मेरी तजल्ली दिखाई जाती है।
घूंघट के पट खोल। घूंघट के पट खोल। आइए आपका तारुफ करवा देते हैं, हालांकि ये तारुफ के मोहताज नहीं है। हारमोनियम पे थे आशिक कुमार साहब, तबले पर थे शांति भूषण झा, लाइट्स पर थे हिमांशु बी जोशी, प्रोडक्शन असिस्टेंट थे निहाल करदम, विद्या जी मैं दानिश इकबाल, हमारी निर्देशिका डॉक्टर अनुराधा कपूर, आप सब ने वक्त निकाला यहाँ आए, हम आपका शुक्रिया करते हैं और सईदा खाला का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मौका दिया कि हम लोग इतना अच्छा टेक्स्ट लेकर आए। अब्बास साहब का शुक्रिया तो है ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।